Good morning, student. As you all know, yesterday in our last class, we have started a video on Microsoft Access, that is our next chapter of class 8. And while discussing that chapter in the last class, I have explained you several things. I have explained you few things, and those things are like how we can start MS Excel, how we can do several other things, what is record, what is database, all these things. Now today I am using this slide here to give you some more information about the Microsoft Access. ठीक है, तो चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं. Now the topic for the day is Microsoft and its history. Microsoft and its history. Now Microsoft is what? Microsoft. चलो एक्सेस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ते हैं. Microsoft is what? It's a multinational computer technology. What is Microsoft? It's a multinational computer technology corporation. Microsoft began on April 4, 1975 when it was founded by Bill Gates and Paul Allen. तो ये सारी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दैट April 4, 1975 को बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने कलेक्टिवली मिलके इस्टेब्लिश किया माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. विंडोज इन द 1990s. विंडो इज व्हाट? अभी पढ़ा है भाई पिछले क्लास में. विंडो क्या होता है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो विंडो जो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो में क्या होता है? विंडो जो कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है? विंडोज में उसने 1990 तक क्या किया? 1990 तक उसने बहुत बड़े पैमाने पे 90% शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स पर्सनल कंप्यूटर उसने क्या कर लिया था? ले लिया था. उसने क्या किया था? 1990 मतलब 1990 में 90% पूरे मार्केट का ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने 90% शेयर पूरे वर्ल्ड कंप्यूटर का उसने ले लिया था. ठीक है. अभी देखो व्हाट इज नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज देखो 1990 से 90% का मतलब क्या? मतलब कि पूरे मार्केट में जितने कंप्यूटर थे उसमें 90% कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो विंडोज था. 90% में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो क्या था? वो विंडोज था. ओके. नाउ as of 2008, Microsoft has a global annual revenue of $60.42 billion. मतलब माइक्रोसॉफ्ट इतनी तेजी से बढ़ा. नो डाउट दैट बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. आप देखते होंगे कि बिल गेट्स रिचेस्ट मैन होते हैं. और आप देखते, अच्छा ठीक है, आप में से बहुत बोलोगे कि नो मैम राइट नाउ वॉरेन बफेट इज द रिचेस्ट मैन. नो मैम राइट नाउ द अदर गाय, दिस अदर गाय एलॉन मस्क इज द रिचेस्ट. या बट ऐसा पता है क्या? सी व्हाट हैपन कि आप देखोगे कि ये लिस्ट क्या करती है? शफल करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है. मोस्ट ऑफन बिल गेट्स क्या होते हैं? रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होते हैं. नाउ सी Microsoft has a global annual revenue of $60.42 billion. That is a lot of money. Now, what does Microsoft do? It develops, manufacture, licenses, and support a wide range of software products for the computing devices. It do all of these things. ये सारे काम क्या करता है? करता है. Now, moving ahead. Moving toward the next thing. So, what we have read so far, that Microsoft is a multinational computer technology corporation. It begins It begins on April 9, 1975 when it was founded by Bill Gates and Paul Allen. Windows in the 1990s had captured over 90% market share of the world's personal computer. As of 2008, Microsoft has a global annual revenue of $60.42 billion. 60.42 billion का $, का उनके पास क्या था? उनके पास इतना मार्केट में इतनी उनकी रेवेन्यू थी. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड.
Now, introduction to MS Access. Now, this is our topic for day. Introduction to MS Access. Microsoft Access, also known as Microsoft Office Access, it is a database management system from Microsoft. It is what? It is a database management system. It is a database management system from Microsoft. It is a member of the Microsoft Office suite of application included professional and higher edition और sold separately. अभी देखो एक्सेस क्या है, ये Microsoft Office suite का एक एप्लीकेशन है. Now Microsoft released the first version of Access in long back in 1992. ठीक है, 1992 में, उतने पहले जब कंप्यूटर का नाम ही बहुत कम लोगों ने सुना रहा होगा एटलीस्ट इन इंडिया, तो उस दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस बनाया. ठीक है, इट वाज सून रिप्लेस विद एक्सेस 1.1 एंड देन एक्सेस 2.0. ठीक है, अब यहाँ पे सारे एक्सेस के मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सारे जितने वर्जन्स हैं वो सारे वर्जन्स यहाँ पे मेंशन है. नाउ क्लास, लेट अस मूव अहेड. Now, Access 2007 was introduced in a new file format ACCBD. ठीक है, ये एक न्यू फाइल फॉर्मेट में बना, दैट इज ACCBD. नया फाइल फॉर्मेट क्या था? ACCBD. रिप्लेसिंग द ओल्डर MDB फाइल फॉर्मेट. रिप्लेस किसको किया? ओल्डर MDB फाइल फॉर्मेट को. इट हैज़ अ बेटर GUI. अभी देखो जो एक्सेस 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें जो एक अच्छी बात क्या थी कि उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा था. तो ये बात हो गई कि दैट इट हैज़ अ बेटर वर्जन, इट हैज़ अ बेटर GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था वो क्या था? बहुत बेहतर था. Now, next is what is MS Access. Now let us discuss what is MS Access. अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस टॉपिक पे कंफ्यूज होते हैं दैट मैम MS Access इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सेल. नो, देखो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है. एक्सेल इज व्हाट? इट्स अ कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर. एक्सेल पे आप क्या करते हो? यू डू कैलकुलेशन. MS एक्सेल पे आप क्या करते हो बेटा? यू डू कैलकुलेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज MS Access? It is a database management program. It consists of rows and columns format. Relations can be set between various data in the database. It is a relational data. चलो समझते हैं एक करके. फर्स्ट इज इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम. नाउ पहली बात तो ये कि आपको समझना होगा, कल भी ये टर्म आया था DBMS. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट? DBMS. DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम. DBMS. sometime it is written program, sometime it is system. So database management system. Now what is database management system? See, database management system is what? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा सेव करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में सारे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सेव करते हो. सिमिलरली व्हाट हैपन? सिमिलरली इन द वेरी सेम वे, व्हेन a big organization, say any company, any factory or a school, airport, what they also need a database management system, a database where they will save all their data. जैसे हमने कल एग्जांपल में देखा कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल का जो डेटा है वहाँ डेटाबेस है, वहाँ पे क्या सेव किया जाता है? वहाँ पे सेव करते हैं स्कूल की जो डेटाबेस है, वहाँ पे क्या सेव करते हैं? स्कूल के डेटाबेस में सेव करते हैं हम टीचर्स के एड्रेस, टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर. ऑल दीज इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होती है? स्कूल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? अवेलेबल होती है. ठीक है, तो दिस इज क्लियर. नाउ सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. देखो एक्सेल भी क्या होता है? एक्सेल भी होता है, वो भी रोज एंड कॉलम की तरह होता है. ओके, एक्सेल भी क्या होता है? रो एंड कॉलम की तरह ही होता है. ठीक है, एक्सेल की भी क्या अब देखो रो एंड कॉलम से हमारा क्या मतलब है? रो एंड कॉलम से हमारा मतलब है कि इन अ टेबुलर फॉर्मेट. ठीक है, जब आप एक्सेल की भी शीट देखते हो तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है. कुछ रोज होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, कुछ स्लीपिंग लाइंस, इस तरह करके होते हैं. तो ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है. सिमिलरली MS एक्सेस भी क्या होता है? MS एक्सेस भी
एमएस एक्सेस, तो अभी हमने देखा कि जो एमएस एक्सेस है वो भी क्या होता है, रो एंड कॉलम के मेथड में, फॉर्मेट में क्या होता है, बना होता है. नाउ रिलेशंस कैन बी सेट बिटवीन वेरियस डेटा इन द डेटाबेस. डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशंस में क्या कर सकते हैं, रिलेशंस भी बन सकते हैं. रिलेशंस मतलब जैसे कि अब जैसे कल एक आपने एग्जांपल देखा था कि ऑर्डर का रिलेशन क्लाइंट के साथ, मतलब कस्टमर के साथ ऑर्डर का रिलेशन. तो इस तरह करके आप, जैसे अगर हम उस ऑर्डर का कीवर्ड डालें तो हमें पता चल जाए कि ये कौन से कस्टमर ने इस चीज़ को खरीदी है. तो दिस इज वाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It can be used for creation and manipulation of data. It is used to create the manipulation and creation of डेटा. अभी देखो एमएस एक्सेस का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट और मैनिपुलेट करने के लिए. मैनिपुलेट का हमारा क्या मतलब है कि सपोज कोई डेटा है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने. अब चेंजेस मतलब सपोज कि मेरे पास क्लास 7th ए के बच्चों की पूरी रिकॉर्ड है. अब हुआ क्या कि एग्जाम हुआ, बच्चे प्रमोट कर गए, बच्चे क्लास 8 में चले गए, लेकिन बच्चे क्लास 8 में गए, अब उनका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें नहीं बदली, बच्चों की ये सारी चीज़ें नहीं बदली. तो अब इससे क्या होगा, जब बच्चों की ये सारी चीज़ें नहीं बदली, खाली बच्चों का नेम, क्लास, खाली क्लास चेंज हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मैनिपुलेट अ लिटिल बिट ऑफ डेटा देयर. ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी, मुझे उस पूरे को फिर से, मुझे उस पूरे चार्ट को फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी. तो दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्टैंड्स फॉर. Now, the next is, चलो अब database की definition. A mechanized, formally defined, centrally controlled collection of data in an organization. So, what is a database? A database is a mechanized, formally defined, centrally controlled collection of data in an organization. Database होता क्या है कि एक जगह किसी एक जगह किसी एक इस किसी एक इंस्टीट्यूशन की एक जगह सारी इंफॉर्मेशन एक जगह में मिल जाए, तो दैट इज डेटाबेस. ठीक है, तो मैकेनाइज, फॉर्मली डिफाइंड, सेंट्रली कंट्रोल. अब जैसे स्कूल का भी जो डेटाबेस है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है. फाइन. ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. Okay, now moving ahead, moving toward the next thing. Now next are the few keywords. ठीक है, अब अगला क्या है, अगला है हमारे पास कुछ कीवर्ड. अब वो कीवर्ड्स क्या है, डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, defined or organized collection of data within an organization. These are few keywords. Now let us understand the various terms. अब कल कुछ terms हमने देखा था, चलो आज इसको फिर से समझते हैं. In Access, data is stored in table. In Access, what happened? Data is where data is stored. Data is stored in the table. A data sheet displays the information stored in a table इन कॉलम एंड रो. ठीक है, तो देखो रो एंड कॉलम जैसे एक्सेल होता है, जिस तरह से एक्सेल क्या करता है, रो एंड कॉलम मेथड में. एक्सेल में आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, यू स्टोर डेटा इन एक्सेल इन अ कॉलम एंड रो वाइज मेथड. ठीक है, कॉलम एंड रो के मेथड में आप क्या करते हो, एक्सेल में पूरा डेटा स्टोर करते हो. सिमिलरली व्हाट हैपन इन योर एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, in your MS Access also. Sorry kids, sorry for the inconvenience. Okay class, so what happened, देखो MS Access, I was telling you that जैसे कि MS Excel पे सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल लाइक मैनर में होते हैं. सी टेबल लाइक मैनर, why we prefer using table like manner, why we don't use word to record the numerical data, the reason is टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ठीक है, टेबल लाइक मैनर में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो पूरी तरह से डिफाइंड फॉर्म में होता है. यू नो दैट क्लास, तो उसके नीचे सारे क्लास, मतलब क्लास, बच्चे का क्लास अगर 5th ए है तो 5th ए के सारे बच्चे एक जगह हमें दिखेंगे. तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर यूजिंग टेबल लाइक मेथड. एंड इन डेटा शीट ऑल्सो व्हाट हैपन, डेटा शीट में भी क्या होता है,
आई मीन एमएस एक्सेस में भी क्या होता है, कॉलम एंड रो वाइज मेथड होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे डेटा शीट किसकी बात हो रही है, जब आप एमएस एक्सेस ओपन करते हो तो वहां पे जो पूरी आपकी इंफॉर्मेशन टेबल होती है उसी को हम डेटा शीट बोलते हैं। मतलब एक शीट होती है, एक शीट जिसमें की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसलिए, और यहाँ पे वी कॉल इट डेटा शीट। ठीक है, एमएस एक्सेस में हम क्या बोलते हैं, डेटा शीट, और एक्सेल में क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। कुछ इस तरह का, जिस तरह का आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन बनाई जाती है और हम क्या करते हैं उसको, वहां पे यहाँ पे अपने डेटा को लिखते हैं। तो डेटा शीट क्या होता है, ये जो पूरी चीज आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज द डेटा शीट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द कॉलम आर कॉल्ड द फील्ड्स। कॉलम आर टर्म्ड एज फील्ड। कॉलम होते हैं फील्ड, दीज आर द एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल नेम, फोन नंबर, एसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स आर द फील्ड। ये जो सारे हैं, दीज आर द कॉलम, दे आर द फील्ड। और कॉलम कैसे हो सकते हैं, कॉलम होते हैं आपके, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, चलो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ, वैसे मैंने बॉक्स बहुत छोटा बनाया है बट स्टिल लेट अस ट्राई। अगर मैं यहाँ पे नेम, ओके, देन नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ एज, एंड देन मैं यहाँ पे डाल दूँ कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, इस तरह करके। तो जो ये आप ऊपर के साइड देख रहे हो, दिस होल इज योर कॉलम, ये क्या है, दिस इज योर कॉलम। ठीक है, ये क्या है, कॉलम है आपका। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कॉलम के बाद नेक्स्ट क्या था, रो। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रोहन। अब रोहन के बारे में, रोहन की एज क्या है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रोहन के बारे में लिखूं, अगर मैं यहाँ पे रोहन के बारे में लिखूं, ठीक है, दिस प्लेस आई वुड लाइक टू राइट अबाउट रोहन, रोहन एज, रोहन नेम, रोहन एज, रोहन कॉन्टैक्ट इन्फो। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रिकॉर्ड। मतलब क्या कि एक इंसान की पूरी रिकॉर्ड एक जगह पे, एक इंसान की पूरी रिकॉर्ड एक जगह पे। ठीक है, ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट इज द, अच्छा चलो फिर से एक बार एक चीज बहुत ध्यान से पढ़िए, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लास, आई मीन आपके एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज फील्ड। कॉलम एंड फील्ड क्या होता है, कॉलम एंड फील्ड, तो कॉलम को ही हम फील्ड कहते हैं, रो को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ए इन अ स्टूडेंट डिटेल फाइल। Now you can use data sheet to create a table, enter data, retrieve data and perform the other tasks. We can use it for all these purposes. We can use it for the all these purposes. Now the next, moving toward the next thing. यूज ऑफ एम एस एक्सेस। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि एम एस एक्सेस के बारे में पढ़ तो रहे हैं भाई, अब एम एस एक्सेस का यूज क्या है। ठीक है, एम एस एक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एम एस एक्सेस का यूज क्या है। अब देखो, एम एस एक्सेस enables to arrange the data in a fixed structure. ठीक है, एम एस एक्सेस व्हाट इट डज, इट हेल्प अस टू अरेंज द डेटा इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट enables to arrange the data in a fixed structure. Its structure makes the information easy to manipulate, sort, display and print. These all are the options that are available here, that जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, we can manipulate the data, we can sort the data, we can display the data and also we can print the data. मैनिपुलेट, जैसे कि बताया कि मान लो कुछ डेटा में थोड़े बहुत से डिफरेंसेस मुझे लाने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे डेटा को चेंज करना, तो आई कैन मैनिपुलेट द डेटा इजली। सॉर्टिंग, किसी बच्चे का मतलब मुझे क्लास 7th ए के बच्चों का सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 7th ए के बच्चों का मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो आई कैन सॉर्ट द डेटा। ओके,
नाउ वी कैन डिस्प्ले द डेटा, डेटा को जैसे कल आपने देखा था, टू डिस्प्ले द डेटा व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्यूटिफाई द डेटा, वी कैन अरेंज द हेडर एंड द फुटर एंड लाइक दैट वी कैन ब्यूटिफाई अवर डेटा। वी, अच्छा देखो वन थिंग मोर, यू कैन प्रिंट द डेटा ऑल्सो। आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप क्या कर सकते हो बेटा, डेटा को आप प्रिंट भी कर सकते हो। डेटा को आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिंट द डेटा ऑल्सो। अब जैसे मैंने एक एक्सेल शीट तैयार कर ली, आप क्या कर सकते हो, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। रिपोर्ट्स का क्या मतलब, सपोज इफ आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हेल्ड इन स्कूल, कौन सा टीचर कितने बजे कौन सी क्लास ले रहा है, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आई हैव टू गिव द रिपोर्ट। तो मैं ऐसे रॉ डेटा तो रिपोर्ट में दूंगी नहीं, व्हाट आई विल डू, आई विल ब्यूटिफाई द रिपोर्ट। मैंने जो रिपोर्ट अपनी बनाई है, व्हाट आई विल डू, आई विल ब्यूटिफाई द रिपोर्ट। ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। Features of MS Access of 2007. So here we are reading about MS Access 2007. यहाँ पे ये जो slide मैंने open की है, here they are discussing the features. Now new templates are available. What is new template? Suppose if you want to create, देखो templates क्या होते हैं, पहले जो छोटे वाले फोन होते थे ना, उसमें मैसेजेस के लिए templates होते थे। मतलब एक फॉर्मेट होता था जिसमें मैसेज लिखा रहता था। अभी भी देखो आपके फोन में क्या होता होगा, जब कोई कॉल आता होगा तो उसमें कुछ टेम्पलेट्स मैसेजेस होते हैं। सपोज करो कि आप ऑनलाइन क्लास में हो और तभी क्या हुआ, कोई कॉल आने लगी, तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ मैसेजेस होते हैं ना बाय डिफॉल्ट जो स्टोर रहते हैं, दैट आई एम बिजी नाउ कॉन्टैक्ट मी लेटर, या कैन नॉट रिसीव द कॉल राइट नाउ, या आई विल बी देयर इन अ फ्यू मोमेंट। इस तरह करके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। तो एमएस एक्सेस में भी क्या होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनहैंस द सॉर्टिंग। अभी क्या है, एमएस एक्सेस का जो मॉडर्न फीचर है, इसमें क्या है, सॉर्टिंग इज वेरी मच इजी। सॉर्टिंग जो है बहुत ही आसान हो गई है। ऑटोमेटिक कैलेंडर्स आर देयर, क्विक टेबल क्रिएशन, अ न्यू फाइल फॉर्मेट, एक नई फाइल फॉर्मेट ACCDB आ गई है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, starting of MS Access, this we have seen in our last class also. Let us recall the things that how we will start the MS Access. MS Access को आप start कैसे करोगे? Starting of MS Access. First of all, you will click on the start button, then all programs, then Microsoft Office, Microsoft Office के बाद Microsoft Office Access 2007 and getting started with the Microsoft Access window will appear. फिर से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट बटन पे आप गए, उसके बाद क्या किया आपने, ऑल प्रोग्राम्स पे आपने क्लिक किया, देन ऑल प्रोग्राम्स के बाद न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक किए, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद आपने कहाँ क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद एक्सेस 2007 पे क्लिक किया एंड गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आपके पास आ गया। ओके क्लास, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। चलो, लेट मी शो यू वंस अगेन दैट हाउ वी कैन डू दिस। लेट मी शो यू वंस अगेन कि कैसे हम ये काम करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन पर। अब देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल प्रोग्राम, आई विल गो टू सर्च ऑप्शन, और सर्च ऑप्शन में जाके आई विल क्लिक ऑन एक्सेस, आई विल जस्ट राइट AC एंड आई विल गेट इट। तो एक्सेस, आई विल क्लिक ऑन ओपन। अभी यहाँ पे क्या है, आई विल क्लिक ऑन द ओपन बटन। तो वंस इट विल टेक सम टाइम। अभी देखो, गेटिंग स्टार्टेड विथ एक्सेस अकाउंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, गेटिंग स्टार्टेड विथ एक्सेस, ठीक है। एंड यू कैन सी, यहाँ पे जैसा कि मैम ने आपको बताया, यहाँ पे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं। दीज आर द टेम्पलेट्स ओनली, यू कैन यूज दिस। अभी देखो, व्हेन आई विल क्लिक हियर, आई विल गेट द मोर टेम्पलेट ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे क्लिक करूँ, अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा और ज़्यादा टेम्पलेट्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है।
जैसे सपोज करो अगर मुझे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्कूल के सारे टीचर्स का चाहिए, तो आई कैन यूज दिस। एसेट ट्रैकिंग के लिए आई कैन यूज दिस, स्टूडेंट आईडी के लिए आई कैन यूज दिस। these all options are what, these all options are available, ठीक है। ओके नाउ क्लास, अब यहाँ पे क्या है देखो, वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, होम, न्यू एंड ओपन, थ्री ऑप्शंस आर देयर। तो ओपन पे जब आप क्लिक करोगे, सो यू कैन ओपन एनी ऑफ द फाइल। अभी फिलहाल आई डोंट हैव एनी एक्सेस फाइल, दैट्स वाई यहाँ पे दिखा नहीं रहा। अगर आपने एक्सेस बनाया हो तो आपको वहाँ पे मिल सकता है एक्सेस। अगर आपने एक्सेस फाइल बनाई है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके नाउ मूविंग बैक टू द होम पोजीशन, ठीक है। अगर सपोज करो कोई एक टेम्पलेट ओपन करके देखना, अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँ, देन सी व्हाट हैपन। अच्छा, क्रिएट एंड मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव, सी समथिंग लाइक दिस विल हैपन। लेट मी सी वेदर आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज और नॉट। और अगर मैं इसको यस तो स्टूडेंट लिस्ट में समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो अगर आप इसको, आई डोंट नो वेदर दिस इज, अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, नो डाउनलोड भी मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ट्राई दिस ऑन योर ओन लैपटॉप, दैट यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट आईडी और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। सो दिस इज द डेटाबेस, यही होता है, इसी को हम कब क्या कहेंगे, वी कॉल इट डेटाबेस, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट द एमएस एक्सेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज creating new blank database. See in this slide all those informations are given, जो information कहाँ है, जो आपकी बुक में थी न थी, तो that's why I am using this slide to explain you the things. Now the first is, अभी जैसा हमने किया start किया access पे, next what we have to do, you have to click on blank database option. Let me show you the blank database option. Just a moment. Not here. Yeah, here you can see the blank database option. I am talking about this only. You will click on the blank database option, you will get something like this, ठीक है। आप blank database option पे क्लिक करोगे, you will get ऐसा कुछ बना हुआ आपके पास आएगा। You will click on this option, ठीक है। You will click on create button, your database will get created, ठीक है। अगर मान लो मैं database का नाम चेंज कर दूँ, अगर मैं इसका नाम चेंज करके सी स्टूडेंट आईडी टाइप का ही कुछ नाम मैं इसका मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। फिर इस तरह करके आप अपने फाइल को यहीं पे रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ क्लास मूविंग अहेड, चलो अभी अपनी स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड नाउ द नेक्स्ट इज टाइप, हाँ सी टाइप द नेम यू वांट टू गिव। ये मैंने अभी आपको बताया दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाइप द नेम दैट यू वांट टू गिव टू योर एक्सेस फाइल। आफ्टर देखो एक्सेस विल ऑटोमेटिकली अपेंड डॉट ACCDB। अच्छा ठीक है, what is this ACCDB? This is basically ACCDB is what? ACCDB is the ACCDB क्या है, ACCDB आपका एक्सटेंशन है। जैसे एक्सेल में आपका एक्सटेंशन होता था, पेंट में आपका एक्सटेंशन होता था, वर्ड डॉक में आपका एक्सटेंशन होता था, सिमिलरली एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने में एक्सेस में भी आपका यहाँ पे ये एक्सटेंशन है। नाउ देन व्हाट, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, द फाइल न्यू डेटाबेस विंडो अपीयर, लोकेट द फोल्डर इन विच यू वांट टू स्टोर योर डेटाबेस। चलो लेट अस ट्राई डूइंग इट, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हमसे हो पाता है। लेट अस सी, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ब्राउज पे हमने क्लिक किया एंड ब्राउज बटन इट इज सर्चिंग। ओके सो इट इज टेकिंग फ्यू टाइम। ओके क्लास, ओके अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे शो कर रहा है कि डेटाबेस नहीं बन पा रहा है। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा शो हो रहा है कि डेटाबेस नहीं बन पा रहा है? माइट पॉसिबल क्योंकि मैं इसको क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्राउज इसे नहीं कर पा रही हूँ। आई हैव टू ब्राउज इट। डॉक्यूमेंट में जाएगा, ये बन क्यों नहीं रहा है? फाइन फाइन क्लास, सो दिस एप्लीकेशन इज डिसेबल्ड, डेटाबेस में नॉट बी क्रिएटेड। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो चलो आई विल सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट सून। Okay class, so today we have discussed about the access. In the next video we will do some more feature, we will make a table and we will move ahead with the same, ठीक है। So class this is it for today and fine, this is it for today and now ma'am will meet you in the next class.